Fine. So now, guys, we are going to see what we'll be going through in the next 2 years. So just sit back and relax. Whichever topic you think कि why this and why that, or you want to know इसका मतलब क्या है, you can anyways anytime stop me. Now, what you can see on the screen? Can someone tell me what do you see on the screen? Anyone? Let us keep it interactive ना. मतलब सिर्फ मैं बोलूं और आप सुनो तो बहुत बोरिंग हो जाएगा. तो आप भी बोलो, मैं भी सुनूंगा. It's an interactive session. It's about talking to each other. ठीक है? Now since I have my video off, I can lie down and teach you. So the perks of teaching from home is many. तो ये ऑनलाइन सिस्टम बहुत अच्छा लगता है मुझको पढ़ाने वाला. हाँ बेटा बोलो. Anybody? What do you see on the screen? Nothing. You cannot see anything on the screen. आप बोलो सोनाक्षी, आप बताओ बेटा. 3 to 4 colors. You Sir, can 3 see to 4 colors. 3 to 4 purple, colors. brown. Now, what if I tell you? What if I tell you this is the universe that you see? This is the universe that you see. So this entire world, this entire universe, it is made up of something. What is that something? Can anybody tell me? Atom. Excellent. Very good, beta. It is matter. ठीक है? Very good, Jishnu. Matter. Jishnu says it is matter. Do others agree? Are we all made up of matter? क्या हम सब लोग मैटर से बने हुए हैं? हाँ सर. ये किसी के यहाँ पे एलियंस ने हमला किया क्या? मतलब वो वाला बंदूक से ऐसा लग रहा था. ऐसा है क्या कि मैं मैटर से नहीं बना हूँ एंड उदय मैटर से बना हुआ है एंड घनश्याम पानी से बना हुआ है एंड आदित्य हवा से बना हुआ है एंड आर्यन एप्पल से बना हुआ है, ऐसा कुछ है? No, our constituent, our basic constituents are the same, right? Or when I talk, so I'm in Ambarnath and you guys are in Kalyan, ठीक है? So when I talk about the air in Ambarnath, जब मैं अम्बरनाथ की air की बात करता हूँ, तो it is, I know it has oxygen, it has nitrogen, it has carbon dioxide, it has a slight percentage of the rare gases, or not rare gases, these नोबल गैसेस एंड ऑल. ठीक है? तो आपका कल्याण में हवा में क्या है बेटा? मीथेन है, कार्बन, सल्फर डाइऑक्साइड है, या फिर हार्मफुल गैसेस हैं, ऐसा कुछ है? सेम कंस्टिट्यूएंट रहेगा. ठीक है? Yes, sir. चलो, ये तो आसपास हो गया कल्याण एंड व्हाट डू वी से अंबरनाथ. व्हाट इफ आई टेल कि थोड़ा सा आगे चले जाओ, आप घाटकोपर चले जाओ. घाटकोपर जाकर के उसमें हवा चेंज हो जाएगा बेटा? Will the air change when you go to Ghatkopar? No, the basic constituents going to remain the same, right? Forget about Ghatkopar. Go to Gujarat. Air is changing? No. Go little overseas. Go to Dubai. Air is changing? No. थोड़ा और आगे चले जाओ, यूरोप में चले जाओ, किसी भी स्टेट कंट्री में. Is the air changing? The quality of life is changing, not the air. ठीक है? Then थोड़ा सा और आगे चले जाओ, आप यूके चले जाओ, वहां पे एयर चेंज हो रहा है. I'm not talking about the climate. I'm talking about the constituents of the air, of the atmosphere over there. ठीक है? Then और आगे चले जाओ, यूएस चले जाओ, चेंज हो रहा है. ठीक है? धरती छोड़ दो, थोड़े से ऊपर, you know there are layers, stratosphere, ionosphere, ozone sphere, blah blah blah, ऐसा रहता है. सुना है कभी? Stratosphere, ionosphere, lithosphere, नहीं? Geography? Yes, sir. तो वहां पे जाएंगे तो वहां पे भी कंस्टिट्यूएंट सेम रहेगा. हाँ, वहां पे भी एटमॉस्फेयर ही है ना. एटमॉस्फेयर के बाहर निकल के स्पेस में चले जाओगे तब तो शायद चेंज होगा. एम आई राइट? चेंज होगा कि नहीं Yes, होगा? sir. हाँ सर होगा. Okay, sir. क्यों? क्योंकि स्पेस इज वैक्यूम. It is just matter. It is just particles floating around. Have you ever been to space, beta? No, I have been to space, bache. So once I was dreaming and I went to space and I saw how things are there. So it is totally different, beta. It is absolutely different.
And anybody of you are curious about why things happen, why the sun, why can't we go to the sun, and what are the other planets made up of, and this and that. मेरे को बड़ी क्यूरियोसिटी थी पहले, मेरे को नासा ज्वाइन करना था एकदम जब मैं छोटा था, बट बाद में पता चला कि इसके लिए बहुत दिमाग चाहिए जो मेरे पास नहीं था, तो मैं बोला छोड़ दो भाई कोई बात नहीं, ऐसा ठीक है ना, इसलिए मैंने जीनियस एकेडमी ज्वाइन कर लिया. Okay, I'm just trying to make you laugh, guys. ठीक है, do not get serious. Trust me. आप रिलैक्स होके पढ़ोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा. Otherwise, that serious grin on the face is going to create a big issues for you in the learning process. Okay, and learn to question. That is what my aim is. Always question. ठीक है. So, this entire universe, it is a beautiful, beautiful place. ठीक है. It is. It is either matter. So this is hydrogen or helium. भाई ये आया कहाँ से? स्क्रीन दिख रही है सब लोग को? सब लोग स्क्रीन देखो. हाँ, Yes, sir. एक दूसरे का वीडियोस मत देखना, स्क्रीन देखना कि मेरे फ्रेंड्स कैसे दिखते हैं कैसे नहीं. ठीक है, अपने क्या देखेंगे, अपने स्क्रीन देखेंगे. स्क्रीन पे क्या दिख रहा है अभी अपने को? मस्त येलो प्लेनेट दिख रहा है ना? ये ऐसा बिग ह्यूज मैटर, हाइड्रोजन एंड हीलियम एंड व्हाट नॉट, इट हैड सो मेनी थिंग्स. अचानक से घूमते 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 क्या हुआ, एकदम ऐसे स्टार्स बीच से एक दिन क्या हुआ, उसको गुस्सा आया और ये फट गया, कबूम, ऐसा आवाज आया था. ठीक है. सो when this exploded at that time, we got this all the different matter. Somebody raised hand. Kya Madhura raised hand? Madhura beta, do you want to ask anything? nahi Madhura, you want to ask bache any question or something? हॅलो सर. Yes bache. सर हे झूम आहे ना ते माझ्या बहिणीच्या नावावर आहे, चुकून ते हात वर झालता. It's you, apna Omkar, right? हा हा सर. Okay. चालेल ते चालेल. Madhura is also a nice name beta. हा हा. तुम अपना नाम मधुकर रखते ना फिर मैच नहीं होता नहीं था. सर, नहीं, मेरे बहन का नाम है. अच्छा अच्छा. पता है मेरा नाम कैसे पड़ा था? मेरा नाम बाय डिफॉल्ट पड़ा था. माय एल्डर ब्रदर्स नेम इज अजय, सो दे हैड नो अदर ऑप्शन टू नेम अदर देन विजय. तो मेरा 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 पैदा होते ही मेरा नामकरण हो गया था कि भाई इसका नाम तो बाय डिफॉल्ट विजय रखने वाला, ऐसा है. तो इट हैपेंस. चलो, नो इश्यूज. वो हाथ रेस देखा था मैंने तो आई थॉट यू वांटेड टू आस्क एनीथिंग. फाइन. सो दिस ह्यूज मैटर का जो बॉल था, इट एक्सप्लोडेड एंड सो मेनी डिफरेंट एलिमेंट्स वर फॉर्म्ड. तो भाई जब से ये एलिमेंट्स बने, ये एलिमेंट्स कंपाउंड बनाने लगे, and so from the very beginning of the universe, chemistry has been into existence. Wherever you see matter, chemistry is going to come to fill. Now when I talk about wherever you see matter, bloody, you are made up of matter beta. आप खुद मैटर से बने हुए हो. आप उठते हो, सोते हो, चलते हो, फिरते हो. You are surrounded by matter only. Matter and matter. You whether you are sitting on a chair or a bed or the floor, you are wearing clothes, you are wearing glasses, you are using phones, laptops, you drink water, you eat food, you take medicines, so many things, right beta? कितनी सारी चीजें हैं, and we don't even realize how we are using or we are involved in chemistry since the time of birth till the time of our death. All the biochemical processes which are happening in your body are all chemical reactions. ये धीरे धीरे आप लोग को सब पता चलेगा. These molecules, they will combine with each other and they'll form crores and crores of compounds. बहुत सारा compounds बनेगा. Chemistry is just fidgeting with all these chemicals and knowing them and studying them that way. So it can be a very simple molecule like say methane. It can be a very simple molecule like hydrogen, like oxygen. It will go up to, the complexity can go up to proteins and DNA, the most complex structure. DNA सुना है बेटा वर्ड कभी? नहीं सुना है. Nice. Deoxy, what's the full form? Deoxynitrol. Deoxyribonucleic acid. Very good. Deoxyribonucleic acid. बेटा DNA कहाँ पे होता है? दिमाग में, हमारे सर में होता है बेटा. है घनश्याम, बताओ मेरे को कहाँ होता है DNA? माइंड्स में. माइंड्स में. ओके. माइंड्स. ओके.
रचना, आपको पता है बेटा डीएनए कहाँ होता है? नहीं पता, कोई बात नहीं। आदित्य कोनार, हेलो सर। हाय आदित्य। आदित्य, डीएनए मैं कहाँ बता होता है? सकता हूँ क्या ओमकार? क्या बोल रहे हो बेटा? मैं बता सकता हूँ क्या? हाँ आप बता सकते हो, बिल्कुल, क्यों नहीं बता सकते, बताओ। मेरे हिसाब से सर डीएनए ना ब्लड से निकालते। ब्लड से निकालते हैं, ओके। आई रियली आई लाइक दिस इंटरेक्शन, दैट इज व्हाई आई आस्क यू क्वेश्चन, दैट्स गुड। ओके, यू आर वेरी क्लोज टू इट मधु, अपना ओमकार। सोनाक्षी, आपको पता है? उदय, सर उदय बोल जीन्स। रहे हैं जीन्स? तो बेटा अब जमाना हो गया मेरे को पहने हुए, बाहर जाता ही नहीं बिल्कुल भी, तो जीन्स कहाँ से पहनेंगे हम? उदय बोल रहा है साला आंसर दे रहा हूँ, तो मजाक खराब कर रहा है मेरा। ओके, जीन्स, वेर आर जीन्स प्रेजेंट बेटा? यू मीन GENES? हेयर में भी होता है, ओके। एंड उदय एंड ओमकार, यू आर वेरी क्लोज टू द आंसर। न्यूक्लियस। सेल्स। पूरे बॉडी में। न्यूक्लियस सेल्स। कौन बोला? न्यूक्लियस, न्यूक्लियस कौन बोला? सर आपकी, प्रखर। हाँ, आपके बॉडी में जो सेल्स होते हैं ना, गूगल करके आंसर दो तुम लोग, ठीक है ना? आपके बॉडी में ये जो सेल्स होते हैं ना बेटा, वो सेल के अंदर पता है आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है न्यूक्लियस। उस न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होता है। यू नो व्हाट इज डीएनए? डीएनए डिसाइड्स व्हाट यू आर, यू नो दैट। आप लोग ने एक्समैन देखा है? नहीं हाँ देखा है। सर। आप लोग ने हल्क, हल्क का नाम सुना है? हल्क, बैनर। ठीक है। उसका ना जीन्स, उसका डीएनए म्यूटेट होता है गाइस। गाइस, यस सर। हाँ सर। भाई मैं डर गया यार, तुम लोग कुछ बोल नहीं रहे थे तो। ये जो हल्क वगैरह होता है ना, उनका डीएनए चेंज होता है, तो दे ट्रांसफॉर्म इनटू अ डिफरेंट पर्सन ऑल टुगेदर, राइट? डॉक्टर बैनर इज नॉर्मल व्हेन ही इज इन हिज नॉर्मल थिंग, बट व्हेन ही गेट्स एंग्री ही ट्रांसफॉर्म्स इनटू हल्क, अ सुपर ह्यूज पर्सन, राइट? नहीं, वो साइक्लॉप्स, एक्समैन, वोल्वरीन, नॉट अ बिग फैन ऑफ मूवीज आई गेस। अभी इंडिया में ऐसा कोई मूवी नहीं है जो मैं तुमको बताऊं कि ट्रांसफॉर्म होता है, ये सब हॉलीवुड का ही मूवीज है। इंडिया में कोई एग्जांपल है? ए अपरिचित, बट अपरिचित इज नॉट डीएनए का म्यूटेंट, इट्स अ स्प्लिट पर्सनालिटी डिसऑर्डर, दैट्स अ डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर। सो जस्ट अंडरस्टैंड दिस थिंग दैट डीएनए इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट molecule. It is a very important structure. It has all the information about you. So if somebody can hold if somebody has your DNA, he can make another you. अगर किसी के पास मेरा डीएनए आ जाएगा तो वो मेरे जैसा एक और दूसरा। क्लोनिंग पता है? क्लोनिंग, which was the first Yes, sir. animal to be cloned on planet Earth? डॉली। sheep. वेरी गुड। डॉली तो ठीक है, डॉली उसका नाम था बेटा, नाम बरोबर याद रहता लड़कियों का, डॉली। sheep. What is the animal? It is the sheep. Very good बेटा, sheep was the first cloned animal. डॉली, वेरी गुड। तो ये सब क्लोनिंग वगैरह किसके थ्रू होता है? ऑल दिस डीएनए एंड ऑल। You know, proteins are very much required at your age. All of you require a lot of proteins to grow. They are the building blocks of the body, right? These proteins are nothing but they are long chain of amino acids. Now what is the amino acid? It is a nitrogen and carbon ka compound, which because of which a long chain is found, a polymeric chain. It is again a compound which is studied in chemistry. So बढ़ती उम्र के बच्चों को प्रोटीन की जरूरत होती है, तो इसीलिए वो हॉर्लिक्स बिरलिक्स आपको देते हैं ना। दैट्स ऑल नॉनसेंस बेटा। नॉर्मल खाना खाओ, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी गुड, ठीक है? ईट हेल्दी, यू गोइंग टू बी फाइन, बट यू शुड ईट अ लॉट एंड यू शुड ईट हेल्दी बिकॉज दिस इज द एज फॉर डेवलपमेंट। वेदर यू टॉक अबाउट कार्बोहाइड्रेट्स, चपाती एंड राइस, यू टॉक ऑफ विटामिन्स, भाजी वगैरह, ठीक है? यू टॉक ऑफ एनीथिंग, ऑल दिस, इन सब का एक स्ट्रक्चर होता है। ये सब कुछ, ये सब ना एक एटम से बने हुए हैं, एक एलिमेंट से बने हुए हैं, या फिर ग्रुप ऑफ एलिमेंट से बने हुए हैं। ये कंपाउंड्स को वी आर गोइंग टू स्टडी इन केमिस्ट्री। Okay, so it's a huge and a very fascinating subject beta. I'm just discussing, I'm see, if you can see the variety of discussion which we are having beta, I am going from the smallest of thing to the most complex of the thing. So when you talk about the stone age man, usko to chemistry का knowledge नहीं था, तब से वो chemistry use करता आ रहा है। आग, fire बनाना, what is fire? It happens because of a reaction called as combustion. Combustion का नाम सुना है बेटा कभी पहले?
ये कंबशन वर्ड सुना है बेटा, कंबशन? यस सर। तो कंबशन की वजह से फायर बनता है। अभी फायर के आने से कितना सब कुछ अच्छा हो गया ना सोनेश की लाइफ में। उसने खाना पकाना सीख लिया, उसने मेटल को मेल्ट करना सीख लिया, उसने क्या बोलते हैं एलिमेंट्स को, एनिमल्स को भगाना सीख लिया, एंड सो ऑन, राइट? So we've been involved with chemistry since our origin, since a very, very long time, beta. Okay. So this fire was used to develop other chemicals like wood, making metals, glass, and so on. So many things, right? All these processes. So you make swords, you have fertilizers, plastics, fabrics, materials, drugs. ये सब हम लोग यूज करते हैं ना डे टू डे लाइफ में। मतलब ऑब्वियसली आप तलवार यूज नहीं करते, फर्टिलाइजर यूज नहीं करते, बट फर्टिलाइजर से उगा हुआ खाना तो आप खाते हो, राइट? आप प्लास्टिक बॉटल्स, प्लास्टिक के सामान यूज करते हो, फैब्रिक, बिना कपड़ों के आप रह नहीं सकते, राइट? देन ड्रग्स, व्हेन आई टॉक अबाउट ड्रग्स आई एम टॉकिंग अबाउट मेडिसिन, बेटा, ठीक है? सो आई गेस हर एक घर में एक फिक्स्ड मेंबर तो होता ही है जिसका मेडिसिन 24/7 चालू रहता है, राइट? तो मेडिसिन आर अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट विच हैव देयर ओरिजिन इन केमिस्ट्री. Okay, now all these forms. Now when I talk about matter, the different forms of matter. So this atom, the सबसे छोटी चीज होती है atom, ठीक है? The very beginning, our study is going to start with an atom, the smallest indivisible particle जिसको बोलते हैं. इसके subatomic particles होते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, बट सबसे छोटा तो यही होता है ना. अगर मैं एक बड़े इंसान की बात करूं या फिर एक बड़े बिल्डिंग की बात करूं या फिर रोड की बात करूं या whatever we talk about. So this periodic table, a very beautiful table which helps us study chemistry so smoothly. ये आपने 10th में भी पढ़ा है, ये आप 11th में भी पढ़ोगे. सेम चीज को थोड़े एडवांस तरीके से, इनकी प्रॉपर्टीज को आप पढ़ोगे. You will study the properties horizontally, vertically, how are they placed in same group, same column, what are the differences, what are the similarities between them. So this entire thing, then protons, neutrons, electrons का position क्या होता है, what is the different theories which tell you the structure of an atom. Then after that we will go on to molecules and compounds, ठीक है? Molecules and compounds are formed by these elements. ये periodic table के कोई भी element को उठाकर किसी के साथ भी भिड़ा दो, आपको कोई ना कोई compound मिलेगा, right? तो अब ये कुछ compounds हैं जो which you have heard of: hydrogen, oxygen, ammonia, carbon dioxide, water. Water is so important. Sulfuric acid, hydrochloric acid, nitric acid, and the list will go on and on, बेटा, ठीक है? So अब ये chemical compounds तो हैं, ठीक है? Chemical compounds, they are having different chemical properties apart from on their constituent elements. मतलब जो उसको बना रहा है उसके अलावा उसका प्रॉपर्टी बहुत अलग रहता है. बोले तो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, राइट? दोनों का प्रॉपर्टी इज एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम वाटर. So if I talk about hydrogen, it is explosive gas, and oxygen supports burning, right? But if you combine them, you get water, जो ना तो खुद जलता है ना ही जलने में मदद करता है. On the contrary, आग बुझाता है वो, right? So we will see different solids, their structures, crystals and amorphous. What is the unit cell? ये सब 12th में आएगा, crystal वाला. We will see different types of mixtures, what are their properties, what are they made up of, right? Then we will also study about the different bonds: covalent bond, ionic bond, hydrogen bond, coordinate covalent bond. So why is this bond study important? This bond study is important because ये जो compounds है बेटा, ये compounds bond बना करके ही बनेंगे ना. ऐसे हवा में थोड़ी कि भाई चल 2 हाइड्रोजन वहां पे है, 1 ऑक्सीजन वहां पे है, वो एक दूसरे को हाथ दिखाएंगे, बोले चल पानी बनाते. ऐसा नहीं बेटा, उनके बीच में कुछ तो there is a scientific reason. There is something called as the octet rule. There is something called as satisfaction of the valency, ठीक है? the change, the stable oxidation state. ये सारी चीजें हम देखेंगे कि ये bonds क्यों बनते हैं, कौन सा bond stronger है, कौन सा bond weak है, air के बीच में कौन सा van der Waals weak bonding होता है जो आसानी से टूट जाता है, and so many different things. Okay, each and everything we are going to study in depth. We are going to discuss about energy. We are going to discuss about reactions which are spontaneous and non-spontaneous. अभी wood will not burn on its own, उसको external energy लगेगा, right?
but there are certain elements, certain compounds when mixed together, even they will just start reacting and happen instantaneously. So spontaneous, non-spontaneous reactions क्या होते हैं, क्या उनके products होते हैं. Then we are going to see the different phases of matter like solid, liquid, and gas. How can we interconvert them? What is the process for interconversion of them? What are their properties in the different phases or in the different states? Okay. At high pressure, low temperature, you have solid, and at low pressure, high temperature, you will have gases at the most stable phase. That way. Then there is something called as plasma also. We will not discuss that much in depth, but entrance के लिए बिल्कुल करेंगे, उसको discuss कर लेंगे थोड़ा सा. Then we are going to see the different types of reactions involved in chemistry, like the addition reaction, the decomposition reaction, the displacement reaction, double displacement reaction, right? So all this you have studied in your school, which you are just going to take ahead in 11th and 12th standard. अब ये सब जो दिखा है ना आपको सामने बच्चे, ये सब हमको पता है. इसको बस अब हम लोग और ज्यादा एक्सप्लोर करेंगे, इनके पीछे के रीजंस, इनके कंडीशंस, अगर ऐसा किया तो क्या होगा, अगर वैसा किया तो क्या होगा, ऐसा ही क्यों चाहिए, वैसा ही क्यों चाहिए, what is a catalyst, how does it affect a reaction, and so on. Then you're going to study different types of laws, different types of examples. Conservation of mass and energy. Energy can neither be created, mass can neither be created nor be destroyed. सिर्फ एक form से दूसरे form में वो convert होता है, right? So this is one of the easiest laws and one of the most important laws. इसके अलावा we are going to see many different types of laws which we are going to encounter in 11th 12th standard. Laws के अंदर derivation होंगे, उनके based numericals होंगे, काफी सारी चीजें होंगी जो हम लोग को 11th 12th में देखने को मिलेंगी. We'll be studying something about log calculations. log सिखाया अभी तक नहीं ना? logarithm सुना है बेटा तुम लोगों ने? logarithm सुना होगा but logarithm निकालना नहीं आता होगा नहीं सर, सिखाया सर ने. बुक से. अच्छा, कोई नहीं, तुमको सिखा दिया जाएगा, आप फिक्र ना करें. It's very interesting. It's very it gives exact answers, ठीक है, rather than doing the traditional way. Yeah. Then we are going to study about kinetics. Kinetics is related to speed of the reactions, how fast, how slow, or how can we control the reaction ka speed, ठीक है. So we are going to study about oxidation, reduction, and together redox reaction, ठीक है. Oxidation means loss of electron. Reduction means gain of electron. When this is happening together, such a reaction will be called as redox reaction. Okay? There is going to be a reducing agent, a oxidizing agent. इनको in depth समझना है. Then we are going to study about this pH scale. pH का full form किसी को पता है? Potential of hydrogen. And POH मतलब potential of hydroxyl group. pH जब 0 से 7 के बीच में रहता है, it is acidic. 7 to 14 के बीच में रहता है, it is basic, and when it is 7 it is neutral. I hope ये पहली बार नहीं सुन रहे हो आप लोग, ठीक है. ये इसके बारे में हम लोग और मतलब ठीक है, ये जो बेसिक्स है ये तो है ही, बट इसके और एडवांस हम लोग सीखने वाले हैं. We are going to see how are acids made, how are salts made, how will they react in aqueous solution. वाटर में इसको डिसॉल्व किया तो कैसे रिएक्ट करेगा and all that way. Then ठीक है, acids are substances which give up hydrogen ion. Bases give up OH minus ions. We are going to see reversible reactions where the reaction can take place in both the directions, forward as well as backward direction. Then when the forward rate of reaction and the backward rate of reaction becomes same, we say the reaction has reached equilibrium. ठीक है, तो इक्विलिब्रियम एक सेपरेट चैप्टर करके है आपको 11th स्टैंडर्ड में. ये तो मैंने बहुत छोटी सी बात बताई उसके बारे में, उसके लॉज, उसके फॉर्मूले, उसके पीछे के कॉन्सेप्ट्स, वो सब हम लोग देखने वाले हैं. ओके, देन when this equilibrium can better be explained through phase changes when we convert solid to liquid to gas and all, ठीक है. So when I talk about chemistry, this is a very small part. घनश्याम को नींद आ गई. I can understand. That is why I'm trying to communicate with you guys, because एक ही बंदा बोलता है तो नींद आती है. ठीक है, ये जो है ना, this is a very
fraction of what we are going to study. ठीक है, इसके अलावा there is a lot to it, और बहुत सारी चीजें हैं जो हम लोग पढ़ने वाले हैं. Then there is theoretical chemistry, जो हम लोग को बहुत सारे laws and logic, the derivations, there is going to be numericals, you're going to find out answers, you're going to solve using log tables, you're going to see how to get the number of moles and how to find out the number of molecules in a compound, and what is going to be its temperature, what is going to be the pressure, and so many different things. बहुत सारी चीजें आप calculate करोगे, बहुत सारे formulas आप देखेंगे how to find out the density, how to find out the volume and all. ठीक है, तो ये सारी चीजें हम लोग compute करेंगे. You're going to come with ahead with of us. You will be using majorly you'll be using log table for calculations. When we talk about physical chemistry, guys, you'll be energy, force, time, kinetics, thermodynamics. ठीक है, ये सारी चीजें इसमें involved रहेंगी. So thermodynamics is the effect of heat on chemicals. Then we'll be studying about electrochemistry, about the different batteries, how they function, how are they made, why do they generate electricity, how can chemicals be used to generate electricity, what are the properties of different materials, what they can be used for, and so on. Then when we talk about analytical chemistry, it's a area of mystery science. वो डॉक्टर सालुम किया था ना CID का, वो एनालिटिकल केमिस्ट्री पढ़ के वहां पे ये करने गया था. भाई इज अ हॉरिबल डॉक्टर, बट स्टिल ये जितने भी CID वगैरह जितने भी होते हैं ना, जहाँ अगर कहीं पे कोई डेथ हो गई, कुछ हो गया, तो वो लोग सीन पे जाके सब सैंपल्स कलेक्ट करते हैं. वो सैंपल्स में देखते हैं कि इसने जो खाया था उसके अंदर जहर तो नहीं था. तो वो कैसे करते हैं, उसके कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स को वो जानते हैं. दे डू डिफरेंट केमिकल टेस्ट्स ऑन इट एंड दे फाइंड आउट कि इसके अंदर क्या मिला हुआ था, क्या मिला हुआ नहीं था, एंड सो ऑन. तो एनालिटिकल केमिस्ट्री इज वन ऑफ दोज ब्रांचेस. ठीक है, देन हर एक मटेरियल का अपना एक प्रॉपर्टी होता है. अभी एनालिटिकल केमिस्ट्री मोर आप लोग प्रैक्टिकली देखोगे. अगर आपका नसीब अच्छा हुआ, कॉलेज खुल गए, तो आप जाकर के वहां पे ये सब प्रैक्टिकल्स करोगे, प्रेसिपिटेशन का, क्रोमेटोग्राफी का, वेयर यू कैन सी हाउ टू सेपरेट कलर्ड पिगमेंट्स फ्रॉम अ कंपाउंड. देन you'll be नहीं, ये नहीं करोगे आप मास स्पेक्ट्रोमेट्री. दिस इज you'll be studying in theory. ये आप नहीं कर पाएंगे बिकॉज उसके लिए अलग मशीन लगता है ऑल. Then inorganic chemistry and organic and biochemistry, ये तीन अलग बहुत बड़े ब्रांचेस हैं जिनको सेपरेट अलग अलग चैप्टर्स के फॉर्म में आपको दिया हुआ है in 11th and 12th standard. So anything which is not related to organic is inorganic, simple as that. So it is generally वो man-made चीजों के बारे में पढ़ेंगे हम लोग. What compounds are there, what are they used for, how are they made, how do they react, how are they supposed to be stored, and so on. ठीक है, तुम लोग बोर तो नहीं हो रहे ना? अभी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मेडिसिन, एग्रीकल्चर, यू नेम द थिंग एंड इट इज प्रेजेंट अराउंड यू. सिंपल एज दैट. व्हाटएवर यू यूज, बेटा, एवरी स्मॉल थिंग यू आर यूजिंग is the product of inorganic chemistry. Simple as that. Now when I talk about catalysis, we are going to discuss the different types of catalysis, how do they affect the reaction. We are going to see is the catalyst actually involved in the reaction, and what is happening to the catalyst, what are different types of catalysts. Okay, then there is something called as organometallic chemistry, which is a combination of elements and carbon compounds, जो हम लोग अलग अलग जगहों पे अलग अलग इस पे यूज कर सकते हैं as catalysts and as compounds, as medicines. अभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का तो पूरा एक संसार है बेटा. कार्बन एंड कंपाउंड्स, carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen are major of the compounds, major of the elements which are in the compound present in organic chemistry. भाई इसमें आप नाम लो और आपके लिए एक चैप्टर बन जाएगा. अल्कोहल्स बोलो, आप अल्डिहाइड्स बोलो, आप कीटोन्स बोलो, you say anything and you get a separate chapter on this. The basic thing is this carbon hydrogen bond. ठीक है, but then you will have majority of compounds which are formed from this carbon chains. ठीक है, endless है, esters है, ethers है, and what not, medicines है, so much. ठीक है.
देन बायोकेमिस्ट्री रहेगा, जैसे मैंने आपको कहा था, आपके बॉडी में जो रिएक्शंस हो रहे हैं, जो सब कुछ चल रहा है, दैट इज नथिंग बट बायोकेमिस्ट्री। हाउ टू हार्नेस, जब हम लोग चपाती खाते हैं, राइस खाते हैं, तो बॉडी में जाकर के वो कैसे सिंपलर सब्सटेंसेस में टूटता है, कहाँ पे एब्जॉर्ब होता है, नॉट एक पूरा प्रोसेस बिकॉज वो बायोलॉजी का पार्ट है, बट वो क्या होता है, दैट वी आर गोइंग टू सी ओवर हियर। ओके, देन बायोमोलिक्यूल्स के ऊपर 12th में आपको एक सेपरेट चैप्टर आएगा, वेयर यू आर गोइंग टू स्टडी कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, lipids are chains which make your fats and so on. Amino acids का chain से प्रोटीन मिलेगा and all. न्यूक्लिक एसिड्स बोले तो न्यूक्लियस में जो आपके एसिड, डीएनए एंड आरएनए जो प्रेजेंट है, which is describing what you are over there, that. Then क्या बोलते हैं, मेडिसिन में, और फिर या फिर हॉस्पिटल में, या फिर इन द ट्रीटमेंट, हाउ दीज कंपाउंड्स कैन बी यूज्ड, हाउ न्यूट्रिशन कैन बी एडवांस्ड फॉर अ बेटर लाइफस्टाइल। सो बायोकेमिस्ट्री इज अ वेरी जनरल टॉपिक, बट उसमें नाम बड़े कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स होंगे, बट देन या इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टू स्टडी, तो इतना कोई इशू नहीं होगा। So this was something which we are going to come across in the coming 2 years, guys. ठीक है, तो आगे के 2 साल ये जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, आपको लग रहा रहेगा कि कुछ इतना ज्यादा नहीं है, बट ट्रस्ट में ये बहुत ज्यादा हो जाएगा पढ़ने के लिए। ये मैंने आपको बस ओवरव्यू दिया है कि ये सारी चीजें जो आपको स्क्रीन पे दिख रही हैं, from as simple as a periodic table to as complex as nucleic acid, acids and bases, reactions, types of reactions, then calculations and kinetics and electrochemistry, thermodynamics, ये सब कुछ मिलजुल करके आप लोग काफी कुछ पढ़ने वाले हैं इन 11th and 12th स्टैंडर्ड। ठीक है, सो आर यू गाइज रेडी फॉर दिस? क्या आप इसके लिए तैयार हैं? Yes, sir. जी, Yes, आपको sir. कोई क्वेश्चन है? डू यू हैव एनी क्वेश्चंस रिलेटेड टू केमिस्ट्री? कैन यू प्लीज आस्क मी दैट? एनीथिंग, इट कैन बी एनीथिंग। आप ये भी पूछ सकते हो मुझे केमिस्ट्री की स्पेलिंग क्या है। सो यू जस्ट हैव टू रिलैक्स एंड जस्ट आस्क व्हाटएवर यू वांट टू नो, इट्स एब्सोल्युटली फाइन। ओके, साइलेंस एंड ऑल। अभी अभी तो लेक्चर शुरू हुआ है, सर के सामने कैसे मस्ती करने का? मस्ती का भी नहीं कर सकते बेटा मेरे सामने। आई एम अ वेरी स्ट्रिक्ट टीचर। आई डोंट नो वेदर यू नो दिस और नॉट, यू आस्क योर सीनियर्स। आई एम सच अ स्ट्रिक्ट टीचर। घनश्याम, व्हाई आर यू स्माइलिंग? सर नहीं सर, कुछ नहीं। क्या बोल रहे बेटा, नहीं समझा? सर नहीं, आप बोले ना करके कि एल्डर से पूछो करके कि स्ट्रिक्ट है, हाँ हाँ हाँ। वो बाजू में रहता है, वो बोला नहीं है करके। कौन है वो नालायक, किसने बोला? वो अभिषेक मिश्रा। Oh my God, अभिषेक मिश्रा, he's a very nice guy, he's a nice student of mine. मैं उसको बोलूंगा नालायक को कि तुम ऐसी मेरे बारे में अफवाह मत फैलाओ। ठीक है, फाइन। सो दिस इज समथिंग व्हिच वी आर गोइंग टू सी गाइस। ये मोटा मोटी हम लोग का क्या बोलते हैं, वी आर गोइंग टू, अरे भाई कौन सा वर्ड यूज करना है मेरे को, वही भूल गया मैं। हाँ, वी आर गोइंग टू इंटरेक्ट विद सच टॉपिक्स। ये सब टॉपिक्स से हम लोग इंटरेक्ट करने वाले हैं, सिंपल एज दैट। ठीक है, तो जस्ट टू कीप यू अम्यूज्ड एंड थोड़ा सा और इन्फॉर्मेशन देने के लिए, इफ यू वांट टू मेक अ करियर इन केमिस्ट्री, लेट अस सी दिस थिंग, व्हाट आर द डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। अलग अलग ब्रांचेस क्या होते हैं केमिस्ट्री के। नाउ व्हेन आई टॉक अबाउट ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री गाइस, अभी जो मैंने आपको बताया ना, वो सब अलग अलग ब्रांचेस में पढ़ा जाता है। वो पूरा ओवरव्यू केमिस्ट्री का था, बट वो कौन सी फील्ड में आता है, उसमें आप क्या करियर बना सकते हो। ठीक है, सो लुक एट दिस, देयर आर डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस, एनालिटिकल, बायो, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक एंड सो ऑन। यू रिमेंबर, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था सीआईडी वाला केस। देखो, ये जो येलो हेड है, ये बेचारा मर गया टेबल पे। इसने ये वाला कॉफी पिया था, अब ये कॉफी है कि क्या पता नहीं। तो ये भाई साहब क्या करेंगे, इस सैंपल को कलेक्ट करेंगे और इस सैंपल के अंदर क्या है वो लैब में जाकर के चेक करेंगे कि भाई इसके अंदर जहर तो नहीं था कि ये खा के मर गया। समझ रहे हो? समझ रहे हो बेटा?
ठीक है, दिस ये जो एथलीट्स होते हैं, जो रनिंग करते हैं, जो स्पोर्ट्स खेलते हैं, उनका यूरिन टेस्ट होता है, पता है? वो लोग चेक करें कि इसके अंदर नहीं, हेलो इसके मतलब तो क्या करते हैं, ज्यादा एनर्जी के लिए परफॉर्म केमिस्ट्री, वो ही एनालिटिकल केमिस्ट्री का पार्ट है, ठीक है। सो द फोरेंसिक साइंस एनवायरमेंटल साइंस यूज करती है, ड्रग टेस्टिंग। क्या बोल रहे बेटा? सर आवाज आपका नहीं आ आवाज रहा है। अटक रहा है, आवाज अटक रहा है। आवाज अटक ठीक रहा है, है। नाउ मेरा आवाज अटक रहा है, इज इट फाइन नाउ? कैन यू हियर मी नाउ गाइस? यस सर, यस सर। Okay, okay, बच्चे, okay. So analytical chemistry is actually divided into two parts, qualitative and quantitative. Quantitative मतलब कितना और qualitative मतलब क्या। तो ये दो क्या बोलते हैं क्वेश्चंस का अगर आंसर आप दे पाएंगे, that is qualitative and quantitative. Qualitative मतलब क्या and quantitative मतलब कितना, ठीक है बेटा। क्वालिटेटिव में अलग अलग मेथड्स हम अप्लाई करते हैं जानने के लिए कि भाई इसमें क्या है, और क्वांटिटेटिव में हम नंबर्स के ऊपर काम करते हैं कि भाई कितना है, हाउ मच है, ठीक है, एंड व्हाट्स गोइंग टू बी द इफेक्ट ऑफ इट, सो ऑन। और ये नंबर्स का एनालिसिस यूज करके हम अलग अलग ग्राफ बना सकते हैं कि इसका इफेक्ट क्या है, इसका परसेंटेज कितना है, एंड सो ऑन, ठीक है। देन द सेकेंड टाइप ऑफ केमिस्ट्री इज बायोकेमिस्ट्री। All the biochemical processes that are happening in your body, sweating and all, क्या बोलते हैं, absorption of water in the blood, then digestion process, then enzymes, and how is the medicine working in your body, all this is included in biochemistry बेटा, ठीक है। बायोकेमिस्ट का काम यही रहता है बेटा कि वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर के प्रोसेसेस को पढ़े और उनको कैसे एनहांस करके यूज कर सकते हैं, एंड व्हाट्स गोइंग टू बी द इफेक्ट ऑफ इट ऑन द बॉडी, दैट इज व्हाट अ बायोकेमिस्ट डज। अब ये सब मेजर कंपाउंड्स हैं, एलिमेंट्स हैं जो आपके बॉडी में होते हैं। तो बायोकेमिस्ट इज अ कॉम्बो ऑफ बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री। अब उसमें देखो अलग अलग फील्ड्स रहता है, एक होता है एंजाइमोलॉजी। एंजाइम का वर्ड, एंजाइम ये वर्ड आई डोंट नो आपने सुना है कि नहीं सुना है पहले। एंजाइम आर द बायो कैटलिस्ट which are helpful, which are responsible for the digestion and the other processes inside your human body। आप जो दवा खा के ठीक होते हैं ना, उसके अंदर भी एंजाइम का बहुत बड़ा रोल है बेटा, ठीक है। Then you have endocrinology, which is the study of hormones in your body. Have you ever heard of this word hormones? There are different hormones. There are for every process there is a hormone inside the body. So endocrinology is the study of hormones in your body. Then clinical biochemistry, जो अभी बहुत डिमांड में है, it is the study of diseases and finding out causes for those diseases, ठीक है। तो अभी जो कोरोना का चल रहा है वो क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री में हो रहा है। Then you have molecular biochemistry, जो सिर्फ मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड्स के बारे में स्टडी करता है, उनका फंक्शंस, उनका स्ट्रक्चर, उनका बॉन्ड्स एंड ऑल। Now organic chemistry does not need an introduction. You know, compounds like fuel, plastics, food additives, drugs, all are organic compounds. कार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स, कार्बन कंपाउंड्स, कार्बन का चेन्स, ठीक है। फोटोसिंथेसिस की बात करो आप, दैट इज दिस इज मोर ऑफ अ बायोकेमिस्ट्री का ब्रांच, बट स्टिल ये अपने बाल में हम जेल लगाते हैं, हम मेडिसिन खाते हैं, ठीक है। सब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कमाल है, ये सब मेडिसिन वगैरह, जेल वगैरह, सोप वगैरह, फूड एडिटिव्स, देन द ऑयल, द क्या बोलते तो भी द पेट्रोल, ठीक है। You should become an organic chemistry. There are different branches in organic chemistry. You can study ketones, aldehydes, ठीक है, hydrocarbons में alkenes, alkenes, alkynes, better your favorite alcohol, right? So many things. Then whatever is not organic, that is inorganic. Studying about metals, how they are extracted, what is their use, what is the effect of acids and bases on these metals, how do they react, ठीक है, इनको कहाँ यूज कर सकते हैं। तो सिंपल सी बात है बेटा, जो भी चीज ऑर्गेनिक नहीं है वो क्या हो जाएगी, इनऑर्गेनिक हो जाएगी। वेदर इट इज क्रिस्टल, we're talking about catalysts, minerals, metals, their structures, their
how their structures be, how are they extracted, what are the reactions and how they helpful. तो जनरली हाइड्रोजन और कार्बन को छोड़ के पीरियोडिक टेबल में जो भी आप पढ़ते हो इज एन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सिंपल एज दैट. इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री अगर मैं बात करूं बेटा, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री इतना सारा प्रोडक्शन होता है. आप प्लास्टिक के बॉटल्स बोलो, आप लैपटॉप बोलो, मोबाइल्स बोलो, anything, brush, clothes, whatever you say, it is all produced in the industry, fertilizers and all, right? तो ये सब कुछ इंडस्ट्री में प्रोड्यूस होता है बेटा. तो इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री इज स्टडिंग द प्रोसेसेस एंड एनहांसिंग द प्रोसेसेस which can be used in the industry. केमिकल्स को कैसे यूज करना है, कैसे उसको एनहांस आउटपुट के लिए यूज करना है. देखो ये प्लास्टिक को बॉटल में कन्वर्ट किया उसने, फिर उसको ये भी होना चाहिए, डिग्रेड भी हो जाना चाहिए. Now when I talk about one more important branch of chemistry is nuclear chemistry. तो radioactive stuff, इसके अलावा भी बहुत कुछ होता है न्यूक्लियर केमिस्ट्री में. It is study of the chemical and physical properties of elements when changes are done in the structure of the nucleus. Generally reactions are happening because of the electrons present, because of the outer shell. But जब भी कोई न्यूक्लियस के अंदर चेंज होगा तब बहुत बड़ी बड़ी गड़बड़ें होंगी, बहुत हार्मफुल रेज विल बी रिड्यूस्ड. ठीक है, तो अभी रेडियो केमिस्ट्री न्यूक्लियर केमिस्ट्री को बच्चे दे आर अप्लाइंग इन डिफरेंट इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड्स, जहाँ पे क्या बोलते हैं, दे आर यूज्ड इन इवन मेडिकल साइंस. अब हम लोग रेडियो एक्टिव यूज कर रहे हैं. देन दे आर यूज्ड इन डिटेक्टिंग प्लेन्स एंड क्या बोलते हैं ships and also it has become very interdisciplinary now. So a very confined use and a very safe use can help us, give us good things, but इसका गलत यूज अपने को पूरा सब खत्म कर देगा, न्यूक्लियर बॉम्ब्स एंड ऑल. Are you understanding बेटा? This was a little introduction about your branches of chemistry. What do we have, how can we study them, and what are our options? ठीक है, so mota moti this is going to be what is there in chemistry. We are going to have numericals, we are going to have theory, we are going to have laws, we are going to have derivations, we are going to have theorems. ठीक है, तो ये सब हम लोग मिक्स करके पढ़ने वाले हैं in both 11th and 12th standard. अच्छा, अभी when it comes to notebook, when it comes to make notes, you guys do not have to make a separate book, you don't have to buy a new book. आपके पुराने बुक्स होंगे लोअर स्टैंडर्ड्स के जिसमें खाली पेजेस होंगे, उनको फाड़ फाड़ करके स्टेपल कर लो और एक बुक बना लो. प्लीज प्रिजर्व द नेचर, प्लीज बिलीव इन रिसाइकलिंग. ठीक है, चीजों को वेस्ट नहीं करना चाहिए, बोथ मनी एज वेल एज रिसोर्सेज, वेरी इंपॉर्टेंट. तो मेरे लेक्चर के लिए हम लोग काफी सारा सॉल्व करेंगे, नोट्स देंगे, सब कुछ करेंगे. मेरा जनरल लेक्चर आपने देखा होगा, तो आई जनरली टेक इट ऑन द बोर्ड. ये तो मुझे वीडियो दिखाना था, दैट्स व्हाई आई वाज यूजिंग दिस लैपटॉप. ठीक है, तो मे बी नेक्स्ट लेक्चर से वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद अ न्यू चैप्टर ऑल टुगेदर, न्यू टॉपिक व्हिच आई विल बी टीचिंग यू ऑन द बोर्ड्स. वी विल बी लर्निंग थिंग्स. One thing which I want from your end is attentiveness and asking questions. ठीक है बच्चे, the very fact that we are using this interactive forum of Zoom is so that you can have live interaction, because I teach in other institutes also where I can see there is no Zoom facility. There's only टीचर बोल रहा है, बच्चे लोग सिर्फ मैसेज कर सकते हैं. It is not a very student friendly way of learning. Here you have live lectures, you can talk to students, you can talk to a teacher any point of time, even after the lecture. अगर आपको लेक्चर में ऐसा है कि आप मिस आउट करके आप पूछ नहीं पाए, तो आप क्लास को मैसेज डाल सकते हो, आप क्लास को बोलेंगे, आपको आपका डाउट क्लियर करके मिल जाएगा at any point of time. So asking doubts, getting your homework checked, getting the extra material which you have solved checked, it is always a welcome in the classes. ठीक है, तो एक्स्ट्रा सॉल्व करो, एक्स्ट्रा पढ़ो. पहले जिस दिन जो पढ़ाया उस दिन उसका टेक्स्ट बुक में से पढ़ लिया, वेदर आपके पास फिजिकल टेक्स्ट बुक है या फिर आपके पास डिजिटल टेक्स्ट बुक है, जो भी है उसके रिलेटेड मैटर इंटरनेट पे आपने सर्च किया, फिर आपको डाउट्स आए, आप वो डाउट्स अगले दिन सर को पूछो. दिस इज हाउ यू आर सपोज्ड टू स्टडी बेटा. ठीक है, आपकी तरफ से भी एफर्ट्स होना चाहिए, एंड वी विल पुट ऑल द एफर्ट्स फ्रॉम आवर एंड, एंड देन वी विल हैव अ हैप्पी सेशंस ऑफ इंटरेक्शंस गोइंग अहेड. ओके गाइस? Yes, sir. Yes, sir. I hope I did not bore you much. घनश्याम बोल रहा है मेरे को नींद आ गई, तू क्या बोर होने की बात कर रहा है? सर नहीं. एक मांगे, ये किधर गया अपना हीरो? ये बहुत सो रहा था.
आर्यन, हाँ ये तो वीडियो ही बंद करके सो गया पूरा। आर्यन तो फुल ऑन झंपा ही ले रहा था। सर। अरे भाई, अरे सर, जग गया सोया जग नहीं गया। हूँ। गुड मॉर्निंग सोया आर्यन। नहीं हूँ सर, सुन रहा हूँ। क्या हो गया बेटा? सर सोया नहीं हूँ। अच्छा अच्छा, कोई बात। ठीक है, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड फॉर टुडे। ठीक है, वी विल सून मीट विद a nice topic which we'll be interacting and learning and discussing. Okay बच्चे? Yes, sir. Any questions from your end? I am open to questions. हेलो सर, क्या? हाँ बोलो ओमकार बेटा, क्या बोलो? अगला भी लेक्चर है ना? अगला आगे भी लेक्चर, लेक्चर है ना? आगे लेक्चर होगा। हाँ मैडम, आगे लेक्चर है ना? इधर गई मैडम, माधुरी मैडम। माइक टेस्ट 1 2 3। जीनियस एकेडमी मैडम क्या लेक्चर में बोर हो जाती रहेंगी ना, सुनती नहीं रहेंगी, तो खाना भी ना खा रही होंगी, उनकी प्यारी सी डॉटर है उसको खिला रही होंगी। प्रतिभा सर मैडम, माधुरी मैथ्स मैडम, का कोई हो? लेक्चर है। अच्छा मैथ्स का लेक्चर है। वाह वाह, वेरी गुड। मैथ्स करना चाहिए बेटा, मैथ्स इज वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ, ट्रस्ट मी।